अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने एथनोग्राफी। Objective: at the end of this lecture you will be able to define ethnography, describe the philosophical perspective of ethnographic research, explain the characteristics of ethnographic research, define ethnography, and explain the methodology of ethnography. Ethnography होती क्या है? Ethnography is a type of qualitative inquiry that involves the description and interpretation of cultural behavior. Ethnographies are a blend of process and product, fieldwork, and written text. एथनोग्राफी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। इसमें कल्चर बिहेवियर को जो है वो देखा जाता है। कल्चर की स्टडी को कहते हैं एथनोग्राफी। Ethnography came from the Greek word ethnos, meaning folk or people, and graphic meaning writing. It identifies its roots in sociology and anthropology. और इसकी जो रूट्स हैं वो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में पाई जाती है। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल स्टडी है और एक एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन स्टडी है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में पाई जाती हैं। Ethnographic research is in some cases concerned with broadly defined culture in what is something referred to as macroethnography. कभी ये जो कल्चर की स्टडी है तो ये जो ब्रॉड स्टडी की जाएगी कल्चर की उसको कहेंगे मैक्रोएथनोग्राफी। And however ethnography sometimes focus on more narrowly defined culture is called microethnography। और जो narrowly defined culture को फोकस करेगी उसको माइक्रोएथनोग्राफी कहेंगे। तो मैक्रो जो मैक्रो है वो ब्रॉड कल्चर को डिफाइन करती है। Ethnographic researchers sometimes refer to amic and ethic perspectives। amic और ethic perspective भी डिफाइन करते हैं ethnographic researchers। वो क्या है पढ़ते हैं। An amic perspective refers to the way the member of the culture envision their world. It is the insider view. The amic is the local language, concepts, meaning of expression that are used by the members of the group under study to name and characterize their experiences। amic perspective जो है वो लोग इनसाइड व्यू है। मतलब कल्चर के रहने वाले लोग अपने कल्चर को किस वे में देखते हैं, वो उनका जो पर्सपेक्टिव है अपने कल्चर को लेके वो amic perspective है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कश्मीर के कल्चर को ले लें तो कश्मीरियों का अपने कल्चर की तरफ जो पर्सपेक्टिव होगा वो उनका amic पर्सपेक्टिव होगा क्योंकि वो इनसाइडर व्यू देखते हैं। वहाँ की लोकल लैंग्वेज एक्सप्रेशन ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको जिस तरह से परसीव करेंगे उसको amic पर्सपेक्टिव कहते हैं। The ethic perspective, by contrast, is the outside interpretation of the experience of that culture। It is the language used by those doing the research to refer to the same phenomena। और बाहर का जो पर्सन होगा वो उस कल्चर को किस तरह से देखेगा उस पर्सपेक्टिव को एथिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कश्मीर के कल्चर को किस व्यू से देखेंगे तो ये हो जाएगा उनका एथिक पर्सपेक्टिव। आउटसाइडर इंटरप्रिटेशन हो जाएगी कल्चर की। Ethnographers strive to reveal what has been referred to as tacit knowledge, information about the culture that is so deeply embedded in cultural experience
that members do not talk about it or may not even be consciously aware of it. टेक्नोग्राफर का काम क्या होता है कि टेक्निक नॉलेज जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी नॉलेज होती है जो कि डीपली इम्बेडेड होती है उनके एक्सपीरियंस में, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते और कॉन्शियसली जो है उससे अवेयर नहीं होते। तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना, इसको कहते हैं टेक्निक नॉलेज। अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर? अब है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव क्या है? The philosophical perspective of ethnographic research is based in anthropology and recognizes that culture is material and non-material. जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है एथनोग्राफी का, वो एंथ्रोपोलॉजी पे बेस करता है और डिफाइन करता है कल्चर को मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर में। Material culture consists of all created or constructed aspects of culture, such as buildings used for cultural events, symbols of the culture, family tradition, network of social relations, and the belief reflected in social and political institutions। तो वो सारी चीज़ें जो कि बनाई गई हैं और क्रिएट की गई हैं वो मटीरियल कल्चर में आती हैं। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फैमिली ट्रेडिशंस हैं, कुछ रिलेशंस हैं और बिलीफ इन सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे जो है वो क्या है, मटीरियल कल्चर है। Non-material culture consists of symbolic meaning, social customs, and beliefs may be apparent in a different culture only over time, but are essential elements of culture। और नॉन मटीरियल कल्चर जो है वो कंसिस्ट करता है सिंबॉलिक मीनिंग को, सोशल कस्टम और बिलीफ को, ऐसी चीज़ें जो कि क्रिएट नहीं की गई, जो कि जस्ट फील हो सकती हैं, उसको कहते हैं नॉन मटीरियल कल्चर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? कॉन्टेक्चुअल, the research is carried out in the context in which the subject normally live and work। रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट की जाती है जहाँ पे जो लोग हैं वो नॉर्मली रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। Unobtrusive, this research avoids the manipulating phenomena under investigation। और फिनोमिना को मैनिपुलेट भी नहीं करती रिसर्च जो है। जैसे लोग रह रहे होते हैं, जैसे काम कर रहे होते हैं, वैसे ही उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। Longitudinal, the research is relatively long। रिसर्च जो है वो रिलेटिवली लॉन्ग होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। तो कॉन्टेक्चुअल होती है, अनऑब्ट्रूसिव होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर आ जाता है कोलैबोरेटिव। The research involves the participation of stakeholders other than the researcher। तो इसमें स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन भी होती है। रिसर्चर के अलावा इस केस को कोलैबोरेटिव भी कहा जाता है।
फिर है interpretative. The researcher carries out interpretative analysis of the data. जो रिसर्चर होता है वो इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस करता है डाटा का. Organic. There is interaction between question or hypothesis and data collection or interpretation. तो interaction होती है between question और hypothesis में, यहाँ पे data collection और interpretation में. तो ये है characteristics of qualitative ethnography. Qualitative research जो कि ethnography हम पढ़ रहे हैं. स्टेक होल्डर जैसे MPMN होगी तो उसको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है. नेक्स्ट है एथनोलॉजिंग रिसर्च. Ethnonursing research focuses mainly on observing and documenting interactions with people and how these daily life conditions and patterns are influencing human care, health and nursing care practices. Ethnonursing जो है वो mainly focus कर रही होती है observing और documenting of interaction with people. लोगों की आपस में interaction कैसी है और किस तरह से वो डेली लाइफ गुजार रहे हैं और ये चीज़ें उनकी हेल्थ पे और नर्सिंग केयर प्रैक्टिस पे किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है. इन सारी चीज़ों को एथनो नर्सिंग रिसर्च में देखा जाता है. Ethnography as a method. People's behavior is studied in everyday context rather than under experimental conditions created by the researcher. लोगों के जो बिहेवियर है उनको एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखा जाता है. मतलब जिस तरह से लोग रह रहे हैं उसी तरह से ही उनको नोट कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है. Data are gathered from a range of sources, but observation or relatively informal conversations are usually the main one. डाटा जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है लेकिन ऑब्जर्वेशन और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है वो मेन चीजें हैं जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है. The approach to data collection is unstructured in the sense that it does not involve following a detailed plan set up at the beginning, nor as the categories used for interpreting what people say and do be given or say. This does not mean that the research is unsystematic, simply that initially the data are collected in as raw a form and one as wide a font as possible. इसमें जो है ना अनस्ट्रक्चर्ड सेंस और कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाती डाटा कलेक्शन की. ठीक है, तो रॉ फॉर्म में जो है वो डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है जैसे जैसे फीजिबल होता है. The focus is usually a single setting or group of relatively small scale. In life history research, the focus may even be a single individual. तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है जो सब्जेक्ट है वो बहुत थोड़े होते हैं. सिंगल सेटिंग यूज की जाती है, छोटा सा ग्रुप है उसको लिया जाता है.
तो इतना शॉर्ट होता है कि कभी कभी एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर भी एथनोग्राफी रिसर्च जो है वो हो जाती है। The analysis of the data involves interpretation of the meanings and functions of human actions and mainly takes the form of verbal description and explanation, with quantification and statistical analysis playing a subordinate role at most. और डेटा एनालिसिस जो है उसमें इंटरप्रिटेशन की जाती है, मीनिंग की और वर्बल डिस्क्रिप्शन की जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो इतना परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हम वर्ड्स को ले रहे हैं, ये क्वालिटेटिव टाइप है, एक उसकी स्टडी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम एक्शंस को और वर्बल डिस्क्रिप्शन जो है उनका एनालिसिस करते हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया जाता। 3 broad type of information are usually solved by ethnographer. एथनोग्राफर जो है वो 3 तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नंबर 1, कल्चरल बिहेवियर, व्हाट मेंबर्स ऑफ द कल्चर डू। नंबर 2, कल्चर आर्टिफैक्ट, व्हाट मेंबर ऑफ द कल्चर मेक एंड यूज, कि वो क्या बनाते हैं और क्या चीज़ें यूज करते हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है कल्चरल स्पीच, व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं। तो कल्चर बिहेवियर में लोग क्या करते हैं, कल्चर आर्टिफैक्ट में वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं और यूज करते हैं, और नंबर 3 में वो लोग क्या कहते हैं। इन 3 चीज़ों को मोस्टली एथनोग्राफर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो? ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। नेचुरलिज्म, this is the view that the aim of social research is to capture the character of naturally occurring human behavior, and this can only be achieved by first-hand contact with it, not by inference from what people do in artificial settings like experiments, or from what they say in interviews about what they do elsewhere. नेचुरलिज्म ये है कि नेचुरली लोगों के बिहेवियर को कैप्चर करना, कि वो नेचुरल सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो क्योंकि इसमें हम उनके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट होगा उन लोगों के साथ, खुद जाके ऑब्जर्व करें कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से एक्ट करते हैं अपने कल्चर के अंदर। ये क्योंकि इसलिए इसमें नेचुरलिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट नहीं की जाती और ना ही उनसे इंटरव्यू लेके पूछा जाता है कि वो क्या करते हैं, बल्कि फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट में जाके देखते हैं कि वो सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को जो है डील करते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें।
नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग। From this point of view, if we are be able to explain human actions effectively, we must gain an understanding of the cultural perspective on which they are based. That this is necessary is obvious when we are studying a society that is alien to us, since we shall find much of what we see and hear puzzling. इसमें यह है कि ह्यूमन एक्शन को हम अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंडिंग गेन करें उनके ह्यूमन एक्शन उनके एनवायरनमेंट में रहते हुए उनके कल्चर में रहते हुए, क्योंकि वो एलियन तो ऐसा होने हम जो है वो उनको नहीं जानते, वो अननोन है हमारे लिए। तो हम जो देखेंगे हम जो सुनेंगे वो हम उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि उनसे वो अपने कल्चर में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो हम जो है अंडरस्टैंड करें उनके एक्शंस को इफेक्टिवली बाय गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, उनके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करके। तो नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग, कि मैंने उनके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट था नेशनलिज्म और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 पे है डिस्कवरी। Another feature of ethnographic thinking is a conception of the research process as inductive or discovery based rather than as being limited to the testing of explicit hypotheses. डिस्कवरी में क्या करना है कि इंडक्टिव बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड होगी ये रिसर्च जो है, मतलब हम स्पेसिफिक से जर्नल जाएंगे और ना ये सिर्फ हाइपोथेसिस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम उसकी जो है ना डिस्कवरी बेस्ड होगी, हम डिफरेंट चीज़ों के मीनिंग्स को डिस्कवर करेंगे। ओके, रिसर्च प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। पहले आप 5 मिनट की ब्रेक कर लो, ठीक है। डिस्कवरी में उनके थिंकिंग और कंसेप्ट को देखा जाएगा और नई नई चीजें जो है वो डिस्कवर की जाएंगी।
Okay, next है research procedures. रिसर्च प्रोसीजर में क्या करना है? The design of an ethnographic research is deceptively simple. ये जो है ना सिंपल है. It appears to require only one act naturally. कि naturally act करना है. Then again, looking beyond, conducting an ethnographic research is a process of discovery. It is something that cannot be programmed. It is not a matter of following methodological rules but a practical activity requiring the exercise of one's judgment. तो रिसर्च प्रोसीजर जो इसमें यूज होता है वो एक्ट नेचुरली. ये नेचुरली एक्ट करना है, नेचुरली लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करके देखना है कि वो अपने कल्चर में किस तरह से बिहेव करते हैं. इसका कोई रूल खास नहीं है, बस ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसमें कि रिसर्चर ने अपनी जजमेंट को इन्वॉल्व करना है. ठीक है, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? ओके, नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन. एथनोग्राफी रिसर्च में हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे? Typically, ethnographic research employs three kinds of data collection. तीन तरह के डाटा कलेक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में. नंबर 1 इंटरव्यू, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन और नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन. This in turn produce three kinds of data और ये इन रिटर्न में तीन तरह का डाटा प्रोड्यूस करते हैं. Quotations, description and expert of documents resulting in one product narrative description. ठीक है. इंटरव्यू किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और फिर इस पे ये तीनों चीज़ों को यूज करके हमें कोटेशन की फॉर्म में डाटा मिलता है, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में मिलता है और नरेटिव डिस्क्रिप्शन मिलती है. इससे ये वाला डाटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं. Watching what happens, listening to what is said, asking questions through informal and formal interviews, collecting documents and artifacts. उसमें क्या करते हैं, वॉच करते हैं कि हो क्या रहा है, लिसन करते हैं क्या क्या रहे हैं लोग, उनसे क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में इनफॉर्मल और फॉर्मल, और डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं. आर्टिफैक्ट्स का वो चीज़ें जो वो बनाते हैं और यूज करते हैं. जैसे वो कुछ कल्चर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है वो जो यूज करते हैं उनको इकट्ठा करना. The data collected include, in addition to the rich descriptive accounts, photographs, maps, figures, tables, text, audio and video records and transcriptions. The most common type of method used in data collection are interviews, both formal and informal, and documents, both formal, informal or official, and through observation. तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, फोटोग्राफ हो सकती है, मैप हो सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स हो सकती हैं, और डाटा कलेक्शन जो है हम इंटरव्यू से कर सकते हैं, फॉर्मल और फॉर्मल, और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. अभी तक क्लियर तो पड़ा?
नेक्स्ट है एथिकल कंसर्न। In conducting an ethnographic research, there are also certain ethical concerns that are being raised every now and then. Overall, they can be summarized as तो ethical concern जब हमने ethical पढ़ी थी consideration यूनिट 2 में, उसमें बताया था कि कोई भी रिसर्च करते हुए हमें ethical consideration को फॉलो करना होता है। तो ethnographic research में भी ethical concerns है जिनको हमने फॉलो करना है। वो क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट है। पार्टिसिपेंट से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है कि वो फर्स्ट स्टडी में रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर वो विलिंग होंगे तभी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, अगर वो विलिंग नहीं होंगे तो रिसर्च को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। नंबर 3 पे उनको हार्म नहीं करना, पहुंचाना अपनी रिसर्च से, और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना। उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज करनी है, किसी और दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करनी। तो इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी, हार्म, एक्सप्लॉइटेशन, ये जो एथिकल कंसर्न है इनको फॉलो करना है। अब एथनोग्राफी आउटकम की आउटकम किस फॉर्म में आएगी हमारे पास? The ethnographer prepares a written report based on the analysis of the culture. The product of ethnographic research usually is a rich and holistic description of the culture under study. जो ethnographic research की रिपोर्ट होगी उसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगी कल्चर की, होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होगी कल्चर की जो कि अंडर स्टडी था। होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन मतलब उसके सारे एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया गया होगा कल्चर के। Ethnographer also make interpretation of the culture, describing normative behavior and social pattern. और वो ethnographic जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे कल्चर की, और नॉर्मल किस तरह से बिहेव करते हैं और सोशल पैटर्न है उनके, उन सब चीजों की। Among healthcare researchers, ethnography provide access to the health beliefs and health practices of a culture or subculture. तो हेल्थ केयर रिसर्चर्स के लिए जो है वो एथनोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में इससे हम लोगों के हेल्थ बिलीफ का और हेल्थ कल्चर का पता चलेगा, और उससे हम लोगों की हेल्थ को जो है वो मजीद बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि कुछ कल्चर में ट्रेडिशनल मेडिसिन को है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। तो ये जब हम कल्चर स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी जो है वो कल्चर है जो ऐसा कल्चर प्रिवेल कर रहा है जो कि उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, उनके हेल्थ बिलीफ है वो कैसे है। Ethnographic inquiry can thus help facilitate understanding of behavior affecting health and illness। तो इस तरह से ethnographic inquiry जो है वो facilitate करेगी and affecting behavior को understand करने में। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन की स्टडी और एथनोग्राफिक कल्चर की स्टडी है। ठीक है।
इसकी डीपली उसकी टाइप कह लो, एंथ्रोपोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी की टाइप में आ जाती है। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, जस्ट और जस्ट ह्यूमंस को, लेकिन एथनोग्राफी में हम उनके कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। इसमें आर्टिफैक्ट भी देखते हैं हम, उनकी लैंग्वेज भी देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ये आगे एक एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन जो समझ में आया हो। ओके, अपनी अटेंडेंस मार्क करें आप।